I believe 5:15. So I believe it's good to start now. So cool. So thank you for joining us. So we have Asad, Tomil, and Amisha at Shubham as our guest alumni. And ये सब लोग लास्ट 2 3 4 साल में आई थिंक गए हैं. किसी को 1 साल हुआ है, किसी को 2 साल हुआ है, या किसी को 3 साल भी हुआ है. So and they are doing all very well in their career, in their life. And I think that's the reason they are here to share their experiences, both of education, work, part time, and most importantly, the tough times which they have seen during their education. So it will be a combination of some good new, as in good information, and maybe some bad information for a couple of you as well. So I'll quickly introduce. So there is Asad. Um, so Asad is traveling, so he'll have his picture rather than his live camera. So Asad went to University of Limerick to pursue his MS in software engineering, which is a dream for a lot of students. Prime, it's a dream for a lot of students to study software engineering. So Asad went for that. Somil, he went for masters in construction engineering management to Queen's University Belfast, again a Russell Group university. Then Amisha Trivedi. She went to UCD, again a dream university for all the aspirants to Ireland. जाएंगे तो UCD ही जाएंगे, नहीं तो हम कहीं नहीं जाएंगे. So she went to pursue MS in HR, and luckily she has a job as well. I'm sorry, Somil has a job as well in their own field, so they're going to of course talk about it. And then we have Shubham, who went to University of Liverpool, another Russell Group university, very popular. And I think footballers के लिए ये first preference होती है. A lot of football aspirants, they are like Liverpool जाना है या Manchester जाना है. So yeah, and he went for MS in BA in big data. So they are all doing very well. So I'll start with the most senior person here in terms of living abroad, and that's Somil, I believe. So Somil, not by age, not by age. I know you are No young, problem, you're sir. smart. You might get some LinkedIn invites as well very soon after this session. So No, sir. Somil, how was your overall experience at Belfast in UK? And I think you are lucky to have a job. So just अभी आप अपना experience share करो education का. So sir, basically, as you know, like मैंने civil engineering इंदौर से करी थी. Then I've had like 3 years of experience. But बोलना चाहूंगा कि like India के experience, I don't think so. In construction industry, they don't count any experience over here, right? So like you have to start from zero. So that's the first point. जब मैं इधर क्वींस में आया तो everything was good. So I've searched for the part times, right? तो इधर देर आर सो मेनी कंसल्टेंसीज जो आपको आपकी फील्ड में ही पार्ट टाइम्स देती है. सो आई अच्छा. वर्क पार्ट टाइम्स ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट एज वेल. लाइक उनको कैड का कोई भी डिजाइनिंग देना हो, लाइक इफ यू नो द कैड्स और एनी सॉफ्टवेयर, सो लाइक यू कैन वर्क इजीली पार्ट टाइम ओवर देयर एज वेल. तो मैं वो भी पार्ट टाइम किया है. एंड लाइक Belfast is a very small town if you compare with London or like any mainland, right? So Belfast is very small town, and I think that's why it's easy to find a job, like I mean like part time or any other job over here. तो जी. वो था. But my course was of 2 years, right? So 1 साल का तो like जो कोर्स होता है आपका वो था basic course, and then 1 years of internship, Placement year. Internship, placement yeah. year. Yes, internship, right? तो वो था. And but it was not hard, but it was not easy as well. Like you have to like work hard and like with the dedication and all. So yeah. But मैं again like second चीज यही है कि like if you want a job, right, so you have to start applying for the job from the very start. Like if you are September intake, then you have to start from November, because like I've faced like 500 plus rejections. I know that like it was very tough time. But yeah, I got offer from April, March. So and again I'm on a sponsorship. मेरे को PSW भी नहीं apply करना पड़ा. So that was like my plus point. So Okay, that so was very good. I will come on that. I will come on that. ये sponsorship क्या होता है? Because there's something interesting term for everyone here. So Yeah. I know it is, but इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे. So सौमिल, अगर मैं आपने बोला कि पढ़ाई बहुत टफ नहीं थी, बट इजी भी नहीं थी. So what do you mean by Yes. that? Because most of the students यहाँ पे ये होते हैं जो RGPV या BU से पढ़े हुए होते हैं, शिवानी या 20 प्रश्न वाले. So वो खुद जानते हैं कि हम नहीं पढ़ पाएंगे. So yeah.
सर अगर मैं पर्टिकुलर सीपीएम की ही बात करूं तो हेलो किसका माइक ऑन है? प्लीज सब अपने माइक म्यूट ही करके रखें तो बेहतर रहेगा। हाँ जी। सर अगर मैं पर्टिकुलर सीपीएम की ही बात करूं तो वी डिडंट हैव एनी एग्जाम्स, वी जस्ट हैव द असाइनमेंट्स। ओके। बट सबसे बड़ी गलती बच्चे ये करते हैं, अगर दे हैव असाइनमेंट्स लाइक दे ट्राई टू कॉपी फ्रॉम देयर फ्रेंड्स और दे ट्राई टू यूज चैट जीपीटी, राइट? But it's good to use chat gpt, but just for the reference, not for like like doing your own assignment or जी। anything like that. तो इसी के लिए मैं बोला था like we didn't have exams, so it wasn't that tough, but assignments थे तो like it wasn't that easy as well. तो ओके। ऐसा। मैं आपने एक और इंटरेस्टिंग चीज बोली कि आपको पार्ट टाइम अपनी ही फील्ड में मिला था, विच इज ऑलवेज अ बिग क्वेश्चन फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कि Yes. जो पार्ट टाइम है क्या वो हम मुझे रेस्टोरेंट में ही करना होगा, बट यू मेंशन दैट यू गॉट अ पार्ट टाइम जॉब लकीली, या मिलता है मिलता इन है। योर ओन फील्ड। यस सर। सो सिर्फ पार्ट टाइम नहीं, अगर आपको लाइक देयर आर सो मेनी कंसल्टेंसीज, आई डोंट नो अबाउट द मेन लाइन अगेन, बट आई नो अबाउट द बेलफास्ट, राइट? आई एम जस्ट टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द बेलफास्ट ओनली. So there are like many consultancies, Hayes Consultancy, and then there are Industrial Times, and like there are many more like that, right? कि जो आपको directly place करती हैं. I would say like जो government companies होती है, housing executive इधर की government company है, तो like मेरे दोस्त है जो permanent job पे थे इनके साथ, but again they won't provide you the sponsorship, so ओके। you have to go directly into the company for the sponsorship. But हाँ, like you can, if you want, you can work part time with the companies if you know like software. Again, it depends on their requirement कि उनका requirement क्या है उस समय पे, ऐसा. ओके। ओके। But it's not that hard to find a part time here. Okay. Another thing, any tip that you would like to give to the civil students if they are coming to UK? So, do you want to advise them कि come with this knowledge, maybe software related हो या कोई topic related हो, या any modern जैसे green technologies, anything you want to suggest? Firstly, if they are coming here, so just get a basic knowledge of software, as in like AutoCAD, Revit, Tekla, right? That is the most required thing right now in the construction industry here. And secondly, मैंने जो रिजेक्शन फेस किया है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, दैट इज कॉज ऑफ माई ड्राइविंग लाइसेंस, यूके का ड्राइविंग लाइसेंस. Okay. मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि लाइक आई हैव अप्लाइड माय यूके का ड्राइविंग लाइसेंस आफ्टर 1 ईयर, लाइक आफ्टर फेसिंग ऑल द रिजेक्शंस. क्योंकि उनका, बिकॉज लाइक वी हैव टू गो टू साइट्स एंड साइट लाइक अगेन एंड अगेन, Hmm. राइट? वी हैव टू ड्राइव Hmm. ऑल द वे एंड दे डोंट Hmm. एक्सेप्ट लाइक इंटरनेशनल परमिट और इंटरनेट लाइक इंडियन लाइसेंस एंड ऑल थिंग्स लाइक दैट. तो Okay. इसी के लिए उन्होंने लाइक कि भाई तेरे पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है देन ओनली यू कैन जॉइन आवर कंपनी, एंड दे वर द लाइक बिग बिग कंपनीज, सो दैट्स व्हाई जस्ट अप्लाई योर लाइसेंस. जैसे ही आप आ जाते हो हाथों हाथ लाइक अप्लाई योर लाइसेंस, बिकॉज इट टेक्स 1 ईयर कि आपकी जो आर प्लेट लगती है उस पर रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, तो वो जी। वेव ऑफ हो जाते हैं ऐसा. सो ड्राइविंग लाइसेंस इज मैंडेटरी फॉर Okay. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. ओके, ग्रेट। एंड आपने बात करी रिजेक्शंस की, 500 रिजेक्शंस। तो इसमें आपने कुछ बताया, मे बी कुछ रिजेक्शंस आपके ड्राइविंग यस. लाइसेंस के कारण थे, और जो बचे हुए रिजेक्शंस थे, कभी रीजन पता चला? नो सर, क्योंकि बचे हुए रिजेक्शंस का रीजन तो नहीं पता पड़ा, बट लाइक मे बी बिकॉज अपना सीवी सिलेक्ट नहीं होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? सीवी सिलेक्ट नहीं होता है, सो लाइक ट्राई टू गेट योर सीवी डन विद फ्रॉम सम एक्सपर्ट, और जो नहीं लाइक दोज हु हेल्प टू गेट योर सीवी बिल्ड प्रॉपर्ली. सो आई डोंट नो लाइक उनका क्या रीजन होता है सीवी सिलेक्ट नहीं करने का. मे बी इफ यू लैक सम एक्सपीरियंस और समथिंग लाइक दैट. हम्म। तो मैं ये क्वेश्चन इसलिए रेज किया बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस इज कि उनका सिर्फ एक रिजेक्शन आता है, एक लेटर आता है व्हिच एक सेज लेटर आता है, अनफॉर्चुनेटली एट दिस अनफॉर्चुनेटली. पॉइंट ये यू मैंने हैव हर सक्सेस। मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग आई हैव सीन दिस इन माय ईमेल, लाइक अनफॉर्चुनेटली कि यू आर नॉट नहीं, बीइंग आई नो, सिलेक्टेड. मैंने कुछ रफली अराउंड 350 रिजेक्शंस अपने टाइम पे जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था मैंने झेले हैं। तो आई आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन कि वो सिर्फ इतना लिख के और बेटर यस. लक नेक्स्ट टाइम। अमीषा इज एंजॉयिंग दिस, अमीषा इज Yes. लविंग इट कि यार ये हम ही लोग हैं जो हम भेजते हैं। I think बट like she can answer this better, like why they reject, or like how we can एग्जैक्टली। get our CV prepared, right? So maybe she मैं, knows better. हाँ, तो आई रिटन दैट विल आस्क अमीषा Yes. व्हेन उनका टर्न आएगा। बट यहाँ पे मैं एक टिप देना चाहूंगा जो स्टूडेंट्स हैं। इसमें एक और होता है, जितना मुझे आइडिया है या मेरे टाइम पे था या मैंने जब भी यूनिवर्सिटीज विजिट करी है, देयर इज अ स्टूडेंट सेंटर इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन एवरी यूनिवर्सिटी। आई थिंक Yes. दे आर ऑफ ग्रेट हेल्प टू ड्राफ्ट योर रेज्यूम एज वेल एज योर कवर लेटर।
Yes, you're तो absolutely आई एम correct. नॉट Yes. वेरी श्योर व्हाट ऑल, मतलब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज उसमें हेल्प करती हैं, बट प्राइमरली बोला जाता है कि सभी अपने स्टूडेंट्स को वो हेल्प करते हैं। तो ठीक है, बट एनीवे सोमिल, ओवरऑल अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? आई मीन यू रियली feel Sir, that your decision of coming to going to UK was good? sir, it was fabulous, sir. I think I had like best 3 years of my life here. Or I don't feel any depression after like when it gets dark, sir. सब कुछ habitual हो जाता है इधर. Like I have like very good friends. Like they have become my family now here. So it's very good. Like amazing experience. And thank you so much, आप सबको. Okay, like of course like it's cause all of you, right? नहीं, I'm बट here. ऑनेस्टली यू हैव पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स, आपने बहुत मेहनत करी है, बिकॉज फैसल इज द ओनली पर्सन हु इज इन टच विथ यू, आई थिंक थ्रू आउट द ईयर। तो Yes. वो मुझे हमेशा ही टेल्स अबाउट योर एक्सपीरियंस, एंड ही ऑलवेज शेयर्स कि सर ही इज डूइंग वेरी वेल, अभी ये किया, अभी ये किया है, और वो स्टोरीज आपकी देखते रहते हैं, तो वो हमेशा, मतलब ही ऑलवेज कोट योर एग्जांपल इन 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 सक्सेस, कभी भी ऐसी कोई चीज होती है तो। और जैसे लाइक वेन एवर यू डू पार्ट टाइम, राइट, तो आपका जो वीजा आता है उस पे लिखा रहता है कि लाइक यू कैन वर्क 20 hours मैक्सिमम. जी जी। So if you exceed that to 24, 25 hours, right? No issues. There is no issue with that. मैंने किया ऐसा. So there was no issue. Because like मैं जो आपको बोल रहा था ना कि मेरी जो पार्ट टाइम थी वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में थी. So if you go to construction industry, so there is a compulsion of working for 12 hours a day, right? Not compulsion, but like कुछ कुछ में होता है कि like you have to work जी 12 hours. So I used to work for 2 days, so it became like 24 hours. So it's easy. So इट्स बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं कि लाइक 20 hours के ऊपर एक्सीड हुआ तो लाइक वो गवर्नमेंट ऐसा करेगी. They don't do anything like that, so it's easy. चलो गुड। तो I'm happy to hear your overall experience, and you're composed and you're very happy of whatever decision that you have taken. So I'll come on Shubham now. So Shubham, you went to a very big institution just like Sawmill, Russell Group, dream for everyone कि हम Russell Group में जाएंगे. So how was your overall experience? Other than वो करण जौहर की बड़ी वाली buildings के अलावा, what is good about University of Liverpool? How difficult is the course? Because it is big data, which involves a lot of coding, I believe, if I'm not wrong. और engineers की coding बहुत weak होती है, especially DAVV, RGPV. We all know that. Yes, true, sir. So it's been great, sir. It's just the course is very much properly designed, बट उसमें यही इशू है कि थोड़ा सा जो चाइनीज प्रोफेसर्स का रहता है उसमें कम्युनिकेशन इशू बहुत ज़्यादा आ जाता है. Okay. Although if you go personally and talk to them about your assignments and whatever is going through your academics, they'll be really good in helping them. But उसमें वही इशू आता है कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन इशू आ जाता है. बट मेरी यूनिवर्सिटी में स्पेशली मेरे कोर्स में बहुत सारे इंडस्ट्रियल टीचर्स थे, Okay. which was very amazing. एक अली सर थे who had experience of 30 years, more than 30 years in good companies. तो जब उनकी क्लासेस लगती थी तो it was very like very good. और कोर्स तो इट इज़ वेरी गुड. इवन मेरे पास क्वींस मेरी का भी था उस टाइम पे, बेलफास्ट का भी था, एंड दो तीन और यूनिवर्सिटी का था थ्रू यू गाइस. बट इसका कोर्स बहुत ही ज़्यादा प्रॉपरली मैंने अंदर से इंटरनली देखा था कि व्हाट दे आर गोना टीच मी. तो इट वाज अमेजिंग. कोर्स इज वेरी वेल डिजाइंड and teachers are amazing. Also, the assignments are not very, very tough and not very, very easy. So you have to work thoroughly throughout your like sessions. मैं But आपसे हाँ, दो चीजें पूछना चाहूंगा शुभम इसमें। आपने बोला इंडस्ट्रियल टीचर, मतलब जो आपको पढ़ाने आते थे yes, वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हुआ करते थे? now they are teacher, but they have हम्म। worked in the industry for 30, 30, 40 years. And तो that teacher आपको also, क्लास में फिर उसका क्या बेनिफिट मिला? आई वांट यू टू एलैबोरेट ऑन दैट। so basically, sir, the practical implementation of the theoretical aspects, वो professors, those who are PhD professors, they can only teach you about the theories and bookish thing, but practically how things are going on in the industry, especially professors are not very well updated on what uh, ongoing right now in the industry. So जो working professionals रहते हैं वो अपने आप को अपडेट ही रखते हैं पूरे टाइम कि हम्म। अभी क्या चल रहा है. दे वोंट टीच यू व्हाट हैज बीन डन. वो अभी बताएंगे कि अभी क्या चल रहा है एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड नाउ और इन फ्यूचर.
which is a एग्जैक्टली। very good plus मैं point. मैं आई वांटेड टू हाईलाइट दिस पॉइंट हियर, तो इसीलिए मैंने आपको उसको बोला, बिकॉज आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स, कहते हैं ना कि मैं पूछता हूँ उनसे, व्हाई डू वांट टू स्टडी अब्रॉड, तो वहां पे कोर्स जो होता है प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल मिक्स होता है। व्हाट्स प्रैक्टिकल? सो देयर आर प्रोफेशनल्स हु आर टीचिंग अबाउट द करंट market trends, they are teaching you the current technology and what's going to happen in the future. तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कोट अगेन सौमिल्स एग्जाम्पल, इफ सौमिल इज इनटू कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ही नोज कि आज के टाइम में किस टाइप की कंस्ट्रक्शन पे काम चल रहा है और फ्यूचर में क्या। हमें तो सिर्फ पता है, हम तो कुछ भारी सा शब्द सुनते हैं, सस्टेनेबिलिटी और ये वो, बट बिकॉज ही इज देयर इन द इंडस्ट्री, ही नोज मच बेटर। And if he's teaching someone, or if he's talking even and telling what, what's the future for construction management and what you should be doing, so I think he's the best person. So I think ये आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। अनदर थिंग मुझे आपसे पूछनी थी कि आपकी क्लासेस हफ्ते में कितने दिन होती थी? So 4 to 5 days, the 4 to 5 classes days होती थी। कॉमल तो आपकी? बट ड्यूरेशन बहुत कम रहता था, लाइक एक दिन में 2 क्लास, तो मतलब 2-2 घंटे की, 4 4 घंटे 3 घंटे, बस दैट्स इट। बट हाँ, क्लासेस रहती थी। सर मेरी वीकली सिर्फ 2 दिन ही क्लासेस होती थी, मंडे एंड फ्राइडे। सो वाह, इट्स लाइक बट फ्रॉम लाइक 10 a.m. till 5 p.m., 7 hours classes. So बाप रे। अमीशा, हाउ अबाउट यू? So for me, different semesters में different classes हुई थी. So for the first semester, I remember मतलब 3 days a week होता था, and last semester 4 weeks हो गया, 4 days हो गया था in a week. sound And timings भी काफी बढ़ गया था, like 10 to 4, 10 to 5, Just wanted one everyone lecture. to understand कि क्लासेस जो होता है वो कैसे होती है अपने इंडिया जैसे, दैट यू हम बंधवा मजदूर। सो कमिंग बैक टू शुभम अगेन। शुभम, now if you talk about the part-time scenario in a city like Liverpool, how was it? So it's amazing. I mean, the best thing being in a tier 2 city is you are earning almost the same money that others are earning in, maybe those who are living in London, but your expense is less. So you can even save. Like they So what have is the average wage rate, Shubham, in case 11, of I would say, sir. अभी wage rate £1 approx से सबका बढ़ गया है. how Like much is it? I'm sorry, 11? 1 pound से बढ़ गया है, but yeah, 11.5 is the average. Okay, 11.5। ओके, पर तो hour. आपने सौमिल जैसे 20 आवर्स से ज्यादा काम किया है? नहीं सर, मैंने इतना एक्सीड नहीं किया है। मैं कभी कभी करता था, बट आई यूज टू मेक श्योर कि मतलब नहीं हो, मतलब मुझे पहले सौम्य सर मिले नहीं, अदरवाइज आई वुड हैव डन द सेम। So, बट Shubham, I don't think you had any prior experience in India, did you? 2 year experience in Cognizant, Oh, but it I'm was sorry. not yeah, मतलब it was fine. So, did it really help you while applying for jobs or anything? Was it Not a really, sir. I'm boost? not into my own field right now. जी, Plus, just after completing my masters, I came back to India just जी, on second day. तो अभी मैंने full time apply नहीं चालू किया है, especially in December also, in my part time I have a lot of work. तो अब मैं जनवरी में ही चालू करूँगा full time apply करना. ओके। But हाँ, मतलब what was your question, sir? नहीं तो Sorry. आई वाज जस्ट वही कि मतलब अब जब अप्लाई करोगे तो डू यू रियली फील दैट योर 2 years ऑफ कॉग्निजेंट विल बी अ Yes, प्लस sir. पॉइंट? Yes, sir. I can accommodate my new technologies that I've learned into that 2 year experience, even though I haven't worked these things in that particular job. But accommodate करने में it will be really easy कि मैंने ये projects किए हैं. Especially ओके। projects तो करने ही पड़ेंगे. Otherwise, what will you see in interview? Even though there are हम्म। 6, 7 steps of like यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा, few of my friends have got job in London and everything, but उनका मतलब काफी hectic process है. It's not easy to get a job here. जॉब एग्जैक्टली। तो आप लोग को कोई लिवरपूल स्पेसिफिक, इफ आई टॉक अबाउट, आर देयर एनी अपॉर्चुनिटीज फॉर नेटवर्किंग? So for big companies, I would say कर मतलब alumni से connect कर सकते हैं, those who have already studied in your university. हम्म। But tier 2 cities में ऐसे big offices होते नहीं है. मतलब mostly they will be part times, like stores and this, like for me in January they are asking me for the managerial roles, ओके। because I've been working with them more than 1 year. अच्छा। They have made me permanent as well. So they were asking me for the management role.
but it's fine. So these kind of jobs are there, but particularly in the sense of your own field, Field, it's IT. yeah, yeah. You have to get into big cities to like Amisha have advantage. She was telling us about the advantages of being in the Tier 1 city. These are one of the advantages. You can network physically, like offline. You can network. Okay. Another thing, Shubham, I wanted to understand आपसे specifically UK के scenario में a couple of university rep have advised me कि Leeds जो location है that's the new upcoming IT hub for UK. Is that true? Not very sure, sir. I haven't heard about like it's not heard much about the Leeds. जी. It's still it's Manchester is a very good city अच्छा. to stay in because it has also like very good combination of expense and salary ratio. Because at Okay. the end you have to have money in your hand. Hmm. Like if Fair you are enough. living somewhere and spending all of the money that you are earning, and it doesn't make any sense. So आपका tentative living expenses कितना होता था लिवरपूल में? Not very much. Monthly expense, I would say 100 and 150 pounds. That's it. Plus, or if I'll include my rent was around 500. It was 500, 600 around. Now I'm living at around 450 something. So monthly expense, including everything, would be like 800 pounds. That's it. 700, maybe 700, 800 pounds, including your shopping and traveling and parties and everything. I was coming on the party वाला also. Yes, yes, including everything, including house parties, food, gatherings, everything included. 700, 800 is enough. Tom will disagree with Max. that. नहीं मजाक कर रहा हूँ. I'm just kidding. But then in that case, Liverpool is quite reasonable, yeah. It's quite reasonable, sir. Yes. The rent is very low here as well. So अच्छा. many of those who have got job in Manchester, they are still living in Liverpool and अच्छा. they have their own car and they travel 40 minutes to the office. So Okay. that's what they're doing because Liverpool Okay. is cheap to live. Liverpool Especially is pretty. safe as well. I अच्छा. don't know how is Belfast, he can Sopal can tell, but Liverpool is not very safe. I have my few of my I mean friends and उनका आईफोन वगैरह ले जा चुके हैं रोड स्ट्रीट पे अच्छा. नाइट वो भी But तो I'm sure this might have happened sometime during the odd hours, not during yes, in the in broad the night, daylight. of course, in the night. हाँ, If तो you are वो तो roaming यार तो alone कहीं in भी the हो night, सकता है ना. yes, for sure. वही बोल रहा हूँ कि लिवरपूल इज क्वाइट सेफ एज वेल स्पेशली because यहाँ पे मतलब mainly it's scouts, it's not like they separate themselves as a scouts person. तो वो अलग ही कल्चर चलता है यहाँ पर, स्पेशली यहाँ इंग्लिश भी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है. You अच्छा. won't be able to grab your English easily. It is very tough. They have their own jargons, their own words. हर एक चीज हम्म. पे वो बहुत वो है. But people are very nice here as well. Okay. They're Especially friendly. in the whole UK, people are very nice to you, and you won't see discrimination between like on the basis of your country or something. ये सब भी मैंने इतना as such देखा नहीं है. Even No where I racism. grew up, no racism, I would say. Very few. Those who are just walking on the street, they can say something to you. Otherwise, when you are doing a job somewhere, they won't like mostly do that. देखो वर्क प्लेस पे I- तो बहुत ज्यादा मतलब वो लोग जिस चीज का ध्यान रखते हैं दैट इज देयर फॉर श्योर एट द वर्क प्लेस. नहीं तो ये हमेशा जैसे एचआर लोग आपको फटाक से निकाल दे. देंगे. Exactly. So, chalo, that's great. So I'll come on Asad because he might have to, leave. So Amisha, you'll have to wait for a few more minutes because Asad is traveling. So I'm sure उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा. Asad, are you there? Yes, sir, I'm still here. So Asad, how was University of Limerick overall experience and how easy was software engineering? क्योंकि आपने पढ़ाई के बाद I think you worked as a freelancer. So भूल गए जी हो गया पढ़ाई. So how was it as in the university overall?
Sir, if I talk about academics, I would say like it's pretty much not as similar as India, but it is like more in practical phase we will see हम्म because जैसे पूरा प्रैक्टिकल ये बाकी मतलब ये रिकमेंड करूंगा आप वहाँ पर जाओ कोई भी जाएगा यूएल में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम्म तो just try to make good friends like friends who have knowledge who knows what they are doing बिकॉज आप फ्रेंड्स अच्छे बनाओगे तो टीम मेंबर्स अच्छे होंगे आपके प्रोजेक्ट्स में और मतलब अल्टीमेटली सब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए टीम्स अच्छी चाहिए होती हैं ओके तो टीम मेंबर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है पूरे कोर्स में देखा जाएगा एग्जाम्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना टीम्स बनाना इम्पोर्टेंट है प्रोजेक्ट्स जो वगैरह सब कुछ होता है वो पूरे टीम्स में ही होता है ओके और ओवरऑल अगर मैं डिफिकल्टी का रेट करूँ 10 आउट ऑफ तो मैं 10 आउट ऑफ 7 दूंगा एज पर डिफिकल्टी नॉलेज वाइज में बोलूँ तो मैं कितना सीखा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से तो 10 आउट ऑफ 8 दूंगा क्योंकि मतलब सब कुछ प्रैक्टिकली होता है ग्रुप्स बनाए जाते हैं प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं और रियल टाइम में आपको प्रोफेसर्स को समझाना होता है और प्रोफेसर्स आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो काफी एक टाइप का मतलब रियल टाइम जैसे आप कंपनी में काम करते हो तो मतलब लगभग वैसे ही होता है तो आप काफी चीजें सीखते हो तो ओवरऑल मैं बोलूंगा कि सब अच्छा रहा मतलब 9 आउट ऑफ 10 दूंगा मतलब पूरे जो कोर्स रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मास्टर्स का असद मैं और यहाँ पे ना एक चीज चाहूंगा कि आप थोड़ा सा हाईलाइट करें। आपने कभी अच्छा पॉइंट बोला कि प्रोफेसर्स क्वेश्चन पूछते हैं असाइनमेंट पे या प्रेजेंटेशन पे। सो जी इससे क्या मतलब था आपका? क्वेश्चन सर इन द सेंस मगर आप मान लीजिए आपको एक प्रोजेक्ट मिली है और आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हो आपकी टीम्स के साथ मतलब आप ऐसा मेरा एक सब्जेक्ट था सॉफ्टवेयर डिजाइन तो सॉफ्टवेयर डिजाइन में आपको प्रोजेक्ट्स बनानी है डिजाइन पैटर्न्स को यूज करके तो 5 टीम मेंबर्स हैं एक टीम में 5 टीम मेंबर्स हैं तो वो डिवाइड कर लेंगे कि मैं पर्टिकुलर डिजाइन पैटर्न यूज करूंगा इस प्रोजेक्ट में और फलाना ये वाला डिजाइन पैटर्न यूज करेगा और प्रोफेसर के पास जाओगे और जब मतलब एक्चुअल आपको प्रोजेक्ट शोकेस करना होगी क्लास के सामने तो प्रोफेसर्स आपसे आपके डिजाइन पैटर्न पे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने इस डिजाइन पैटर्न को कैसे इंप्लीमेंट करा हो ये क्या सॉल्व कर रहा है तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब ये चीज़ें मुझे बहुत सही लगी मेरे कोर्स में और तो असद मैं यहाँ पे एक ब्रेक देना चाहूंगा। जी व्हाट मैं स्टूडेंट्स को एक्चुअली ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये जो प्रैक्टिकल चीजें हैं ये आप सीखते हो, ये सब एग्री करेंगे, चाहे वो शुभम हो, सौमिल हो, अमीशा हो, या आपने जैसे इस पॉइंट को हाईलाइट किया कि जैसे हमारे देश में प्रेजेंटेशन होते हैं तो कोई पूछता नहीं है, स्टूडेंट्स तो कुछ पूछते ही नहीं है, टीचर तो वैसे भी बिजी रहता है, टीचर को तो ग्रेड्स वही देने जो आपकी अटेंडेंस के बेसिस पे जी होता जी है। सर तो बट वहां पे ऐसा नहीं होता है। जो प्रोफेसर है वो एक्चुअली आपसे क्वेश्चन कर रहा है, सो यू आर लर्निंग दी स्किल्स, हाउ टू हैंडल क्वेश्चंस। मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऑल्सो आप पढ़ के जाते हो, एज इन जो भी आप बना रहे हो वो पढ़ रहे हो, अनलाइक इंडिया की वो किसी दोस्त ने बना दिया एंड यू हैव जस्ट रेड द स्लाइड्स एंड यू जस्ट वॉक फ्रॉम द स्टेज। जब एग्जैक्टली योर ऐसे यही वो यही है पॉइंट तो है मेरा यही पॉइंट है कि ऐसे रहता है वहाँ पर हाँ और एग्जैक्ट। ये एग्जैक्टली और तो बाकी आपको सर पढ़ाई करके जाना पड़ेगा, मतलब जब आप कोर्स करने जाओगे तो यू शुड बी वेल वर्स्ड विद व्हाट यू हैव स्टडीड इन इंडिया। सर पढ़ाई का तो सर अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑप्ट कर रहे हो तो मैं यही बोलूँगा प्रायर नॉलेज तो होने चाहिए आपको कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल से क्योंकि मास्टर्स कोर्स है सर अल्टीमेटली और काफ़ी मतलब आर्किटेक्चर पे बात होती है मतलब सीनियर लोग भी होते हैं तो वो मतलब बेसिक्स तो आपको पढ़ाएंगे नहीं क्योंकि काफ़ी हम्म। सीनियर और मैनेजर लेवल के क्लासमेट्स भी थे मेरे तो अच्छा, आपको ऑब्वियसली नॉलेज तो चाहिए होगी सीएस फंडामेंटल्स की तो आपके साथ कितने ऐसे स्टूडेंट्स थे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स थे या सर उनको? ऑलमोस्ट सभी थे सर बाकी मैं बस 2-3 को अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं 40 आउट ऑफ 45 स्टूडेंट्स थे तो 2-3 को एक्सक्लूड करके क्योंकि मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं था सर प्रायर मैं भी एक फ्रेशर ही था जी। तो हम 2-3 को एक्सक्लूड करके सर बाकी सब लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स थे वहाँ पर तो तो जब मतलब आपके प्रेजेंटेशन या असाइनमेंट होते होंगे तो वो बहुत डिफरेंट होते होंगे। सर जी सर काफी सर किस इसमें बोल रहे हो डिफरेंट होते होंगे मतलब जो उनका लेवल होता होगा वो बहुत डिफरेंट होता होगा। सर एग्जैक्टली बहुत डिफरेंट होता है बहुत बहुत डिफरेंट होता है सर पूरे बाकी सबका जो लेवल होता है और सर सॉरी। जी जी, सॉरी यार, वो किसी का माइक ऑन था तो मैं आईना को कह जी रहा था कि नहीं सर उसको काफी बंद करो। डिफरेंट होता है सर वो आप जी। मतलब वही मैंने जैसे बताया आपको मैंने कि बिल्कुल रियल लाइफ जैसे प्रोजेक्ट्स बनती हैं और एप्लीकेशंस बनते हैं तो वो एक आपको एक्सपीरियंस मिलता है एक्सपोजर मिलता है और काफी चीजें सीखते हो आप जो चीज मतलब इंडिया में अपन नहीं सीख पाते क्योंकि जब पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड कोर्सेज होते हैं और वैसा नहीं था मतलब वहाँ पर और यही बोलना चाहूंगा सर इसमें
Asad, did you had an opportunity to work as an intern somewhere? Internship आपने No, sir, करी थी not during the not program? yet, sir, not yet. I'm actually applying for full-time roles as of now. I'm not Okay, focusing on intern because sir internship में अगर honestly बताऊँ आपको तो interns mostly grad students के लिए ज़्यादा opportunities हैं interns की, क्योंकि वो okay, लोग companies भी opt grad students को करती हैं जो graduate role कर रहे हैं वहाँ पर, सॉरी जो grad programs कर रहे हैं 4 years का bachelor's degree ले रहे हैं। जी, और मास्टर्स स्टूडेंट सर फुल टाइम ही लोग फुल टाइम ही करते हैं सर, बाकी सब मास्टर जो होते हैं। और अच्छा, इंटर्न सर करना है तो सर इंटर्न्स के लिए सर अगर आपका मतलब दो मतलब आपके गोल्स हो सकते हैं, या तो फॉर एक्सपीरियंस आप कर रहे हो या तो फॉर मनी आप कर रहे हो। तो फॉर मनी तो मनी वाइज तो सर आपका मतलब पार्ट टाइम वगैरह में इसमें हो जाएगा। और फॉर एक्सपीरियंस वाइज सर मैंने देखा है कि काफी स्टूडेंट सर इंडियन कंपनी से भी इंटर्नशिप कर रहे हैं, मतलब वहां पर रिमोट इंटर्नशिप लेते हैं, एक्सपीरियंस लगा देते हैं सर। तो ये भी सर, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस। इट्स ओके आप कर रहे हैं सेशन, वही बहुत अच्छा है। मुझे एक और चीज बताओ आप, असद, जी कि बताइए आप लिमरिक में लिविंग एक्सपेंसेस कितना होता है और आपको सर। पार्ट लिविंग टाइम को एक्सपेंसेस कैसे में, मिला था? जी जी सर, अब सर ये भी डिपेंड करता है अगर आप ऑन कैंपस में रह रहे हो या ऑफ कैंपस में रह रहे हो। ऑन जी, कैंपस में रह रहे हो सर आप, तो लिविंग एक्सपेंसेस आपका ज़्यादा रहेगा। ऑन एन एवरेज आपकी जो रेंट रहेगा ऑन कैंपस में वो 650 to 700 यूरोस रहेगा। ओके, जी और सर फूड फूड अगर आप ग्रोसरीज वगैरह की बात करोगे और बाकी आपके जो टॉप ऑफ द एक्सपेंसेस रहते हैं ग्रोसरीज से भी हटके, तो उसको मैं टोटल कर दूंगा तो 300 यूरोस तक चले जाएगा सर। तो ओके। ऑल इन ऑल सर 1000 यूरोस पर मंथ पड़ेगा आपको अगर आप ऑन कैंपस में रह रहे हो। अगर मैं और वहीं बात करूँ ऑफ कैंपस की, तो ऑफ कैंपस काफी चीप है अगर आपको घर मिल जाता है, और मिल भी जाता है सर। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ये बहुत बड़ा एक तरीके से मिथ है कि मतलब ऑफ कैंपस मिलते नहीं है लिमरिक गुड, वगैरह में। तो गुड, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि ऑफ कैंपस जाओ, और ऑफ कैंपस में काफी ज्यादा चीप और अफोर्डेबल रेट्स मिलते हैं आपको आपके अकोमोडेशंस वगैरह में। और जी। एक काफी अच्छी लाइफ आप स्पेंड करोगे एक साल। तो वहां अपन ऑफ कैंपस देखते हैं, तो क्या हम यहाँ पे 800 यूरोस की बात कर रहे हैं, शुभम जैसे? सर ऑफ कैंपस में ऑल इन ऑल सर 600 यूरोस या 700 यूरोस तक पड़ेगा आपका पूरा एक्सपेंस एक मंथ का, रेंट को और आपके ग्रोसरीज वगैरह को मिला के। ओके, तो काफी रीजनेबल है। काफी रीजनेबल है। और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, बिकॉज इट्स अ स्मॉल सिटी कंपेयर्ड टू डबलिन, जी सो हाउ सर। इज इट? आई मीन, डू सर यू नीड अ कार? ट्रांसपोर्टेशन, सर ट्रांसपोर्टेशन भी काफी चीप है सर। अगर सर 50 सेंट्स लगते हैं बस एक बस राइड के, आप बस 50 सेंट्स कट ऑफ होते हैं आपके कार्ड से, और उन 65 सेंट्स, तो उन 65 सेंट से आप कहीं भी जा सकते हो सर, वन स्टॉप टू अनदर स्टॉप। और वो मतलब ये मैटर नहीं करते कि दूसरा स्टॉप कहाँ पर है। अगर वो 5 किलोमीटर्स भी हुआ और 10 किलोमीटर्स भी हुआ, आपके सिर्फ 65 सेंट्स कटेंगे पर राइड। ओके, तो भोपाल, मतलब भोपाल की रेड बस से भी सस्ता है? भोपाल की रेड बस से भी सस्ता है सर। और काफी चलो अच्छा एक्सपीरियंस भी है भोपाल की रेड बस से तो। चलो, दैट्स ग्रेट। और वेदर कैसा रहता है? ऐसे ही जैसे यूके में रहता है, कभी बारिश, जी बस कभी भी वेदर ही ठंडी? सर एक नेगेटिव पॉइंट बोलूंगा मैं, क्योंकि मैं इंडिया भी आया हूँ, तो एक वेदर ही बस एक पॉइंट है कि मैं आया हूँ इंडिया थोड़ी सनशाइन सनशाइन लेने। जी, बाकी वेदर जो सर वेदर बहुत डल रहता है सर, बादल रहते हैं और बारिश होती रहती है, जी। और सन तो निकलता नहीं है। तो एक वेदर ही बोलूंगा सर, बाकी तो सब सही है सर। चलो, दैट्स ग्रेट। ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा है अभी तक? सर ओवरऑल एक्सपीरियंस अबव एवरेज बोलूंगा सर, अबव एवरेज। ओके, तो मतलब हैप्पी हो? हैप्पी हूँ सर, ऑफ हैप्पी हूँ। खुश हो आप वहां जाके अपना डिसीजन लेके? जी खुश हूँ सर, खुश हूँ। चलो चलो, that's great. So I'll come on Amisha now, because Amisha is showing sunshine की कौन कह रहा है अंधेरा होता है। देखो, एकदम सनशाइन हो रहा है, सीधे मेरे मुंह पे लाइट पड़ रही है। So Amisha, now we'll come to you, because आपका सबसे रॉयल एक्सपीरियंस होगा। You're living close to the campus, you're spending a lot of money, and you studied at UCD, one of the finest institution and number one in Ireland. So how was your overall experience at UCD? So UCD experience was good. I never attended many lectures, to be honest. But ऐसी एडवाइस मत दो यार, आप लोग क्या कर रहे हो? एक कह रहा है 24 घंटे काम कर लो, 20 because से I ज्यादा attended, काम कर लो। I would say that practical thing is very true here. And मेरा first semester मुझे यहाँ का curriculum समझने में ही लग गया, because it was so different, whether it be assignments, how the way you do it, and everything. And grades लाना is very tough.
whether it be assignments, whether it be written exams. मेरे written exams भी थे proper hall में जाके invigilators के सामने, and assignments भी थे, presentations भी थी. But the one positive point is मेहनत बहुत करवाते हैं assignments में, but at the end professors उतनी ही मेहनत करते हैं आपके assignments को review करने में. And they give proper feedback. I remember I used to get feedback of like one page mentioning every grammatical mistakes I made during my assignment, and whether it be presentation, they used to, have this 15 minutes of conversation after the presentation, and they used to ask, oh, why you added this point over here, and we used to give the explanation, and then they also used to give their point of view about how we can improve. And as HR role is very theoretical, but the professors try to make it more practical in the class. Like, for example, मेरा first semester में conflict management करके एक subject था. So they literally, for every class they literally made teams. So one was the union team, one was the management team, and they literally gave us scenarios which both of the teams didn't knew, and we have to figure out how we end up in a concluding statement. So that was something really good. They also took us to places like WRC, जो यहाँ की negotiating community है, उनसे मिलवाना, how things really work there. So I guess practical thing was a really good part over here. And I guess 3 months though is a minimum you take to adjust to a new environment, new culture. And Irish लोगों का accent भी बहुत अच्छा होता है. So it takes time to understand everything. But it was good. Part times मैंने बहुत switch करी हैं. I like literally did 4 part times. First, when I came in first month, I was like, okay, I will just understand how the city is, everything, because Dublin बहुत ज़्यादा शांत जगह थी. But for the first week when I lived in the city, like city center, क्योंकि accommodation नहीं मिला था, तो मुझे 1 हफ्ते का accommodation मिला था. I lived in the city and I just thought, oh my God, यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, and I never wanted to come to a place. इसलिए मैंने कभी लंदन का ऑप्शन लिया नहीं. क्वींस मैरी वगैरह से आया था मुझे, बट आई वाज लाइक नहीं. फिर मैंने अकोमोडेशन बदला. सो इट विल बी अ लॉट ऑफ हसल बिकॉज यू हैव टू चेंज अकोमोडेशंस, यू हैव टू मैनेज योर क्लासेस, and then you have to look for part times as well, because when you start looking for part times, it takes you around like a month to get calls from part times like, okay, are you available? And then मैंने pharmacy में काम करा है for 2 weeks, but I then left it because I wasn't feeling good there. Okay. For reasons. But उसके बाद then I worked in Primark, which is like a good retail brand here. And इंडिया में मुझे मार्केटिंग और कंटेंट में एक्सपीरियंस था, सो आई न्यू दैट आई हैव टू समवेयर गेन एक्सपीरियंस इन एचआर कैसे भी. So the last part time I started, so there was this head HR. So I connected with her and said that if there is any opportunity where I can work with her for about a month or 2, I would be happy to do that. And she agreed. And for 2 months, I worked there as an HR assistant. I'm sorry, I want to cut you here. I wanted to understand आपने उसको contact कैसे किया? आपको उसका reference कैसे मिला था? So I applied there as a customer experience specialist for the role of a customer experience specialist, and she gave me a call, are you available? And at that particular time, their building was really renovating. So they were looking for someone who can join after a month. And then I shared that I'm doing my master's, and she being an HR, she also was the only HR in that whole place. So she was like, oh, if I will need help, I will definitely give you a call. And she did after a week. And she said, will you be willing to work with me as an HR till the place is not ready? So I was मतलब like, आपने वहां भी जुगाड़ लगाया, कॉल किया था कस्टमर रिलेशनशिप के लिए और उसको अप्रोच किया, पिच किया किसी और चीज के लिए. सो इंडियन जुगाड़ हर जगह लगाने में एक्सपर्ट है. बिकॉज आई नो कि मुझे HR में जाना है, और मेरा पहले से था कि मुझे ग्रेड रोल्स में अप्लाई नहीं करना है, बिकॉज फॉर द ग्रेड रोल्स यू हैव टू लाइक साइन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अबाउट लाइक 18 months or 24 months. Okay. And then I somewhere knew कि मुझे बाहर सेटल तो नहीं होना है. I have to come back to India after 3-4 years. हाँ, तो इसलिए I was like, दूसरा कोई एग्री नहीं कर रहा है इस बात से. For my own कर रहा है. And फिर HR का रोल करा, बट उसके बाद भी I felt कि अगर if I get an internship,
तो बट यहाँ पे थोड़ा सा जॉब्स का सीन ऐसा, यू हैव टू अप्लाई रिग्रेसली टू गेट सम कॉल्स, यू गेट अ लॉट ऑफ रिजेक्शंस. एंड उस टाइम कॉलेज भी चल रहा था, असाइनमेंट्स भी थे, प्लस मेरी वो पार्ट टाइम भी चल रही थी. बट देन आई गॉट दिस इंटर्नशिप, इट वॉज एन अनपेड इंटर्नशिप. ठीक है, सो आई डिड दैट फॉर अबाउट लाइक 2 months as an HR administrator. Great. And I was like, अब मेरे पास कुछ है रिज्यूमे में दिखाने के लिए where I can highlight the word HR, because marketing content से HR में होना बहुत बड़ा shift हो जाता है. Shift हो जाता है. So I had 2 things in my resume. First, customer experience, and 2 these. So 3 things. And then I thought ki how I will frame it if I end up having an interview as an HR, ki how I will explain ki marketing se kyun I switched. Somewhere I understood my resume very well ki okay, I can highlight these point. And if जब मेरा HR एडमिनिस्ट्रेटर का एक इंटरव्यू आया था तो मुझे पता था कि द मेन कीवर्ड इज एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, मैंने क्या करा है. So I tried to figure out a summary based on my resume कि I will highlight कि इस particular role में मैंने ये चीज सीखी. That's why I am like more apt for this role. Because जो मेरा जॉब था उसके लिए उन्होंने minimum 1 year of experience मांगा था. But it also depends how confident you are when you're giving an interview. Exactly. नहीं, but this is a very useful tip for everyone future के लिए कि हमें, जैसे मैं हमेशा ड्यूरिंग काउंसलिंग ऑल्सो आई यूज दैट वर्ड, जो कि बहुत से लोग थोड़ा बुरा भी लगता है, कि वी हैव टू फैब्रिकेट अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई मीन ऑनेस्टली, अगर हम उस रेलेवेंट बैकग्राउंड से नहीं है या अगर वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो जैसे अमीशा ने किया, यू विल हैव टू फैब्रिकेट, यू विल हैव टू फाइंड वेज टू प्रूव योरसेल्फ इन द इंटरव्यू कि व्हाई एम आई केपेबल फॉर दिस जॉब, या मैं इसके लिए फिट कैसे हूँ. सो अमीशा, एक और चीज I wanted to understand that, we have heard that if you go to UCD, so Smuffet Business School, one of the finest business schools in the world, the alumni base is huge, they are very supportive. So what do you want to say on that? I mean, how helpful or supportive the alumni base was? So I guess the career network that you talked about, about resume building and cover letter, so that is very good in UCD. So you get one-to-one counseling sessions, one-to-one like reviews on how you can update your resume, make it ATS friendly. That is very important. And then they give you suggestions, and you can book your call. You can go to UCD, have a in-person review session, and I guess that is very helpful. And other than that, I guess this ATS thing, बहुत सारे scams भी हो रहे हैं, because there are many people out there who will reach out to you on LinkedIn saying that, oh, I will charge 50 euros and I will make your resume and then you will get calls from interview. And in my whole process, what I understood was, मैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में वो हो गई थी कि I was not more applying jobs, I was just updating my resume. But it was not the point, because the point, I got a call from Amazon for the interview. And I was like, okay, fine. Like, if I got a call from Amazon, there is something not wrong in my resume. I guess maybe it's the approach that I'm taking it wrong, or maybe I'm not adding the right keywords. But the formatting and everything is right. So what I would really suggest is go to Udemy, get a course, and like you will just get to know how you can make your own resume ATS friendly. You don't need to spend like 60, 70 euros. And then like, and I will, Useful it is, tip, of course, it's a useful tip. That makes yeah. more sense. And if it's coming from an HR, so it is validated. Yeah. I mean, yes, you just go to Udemy, get a course. It will take you 1 hour to just understand how to make your resume, and then yeah, that's it. You're good to go. चलो, now because बहुत टाइम हो चुका है आप लोगों से, मुझे आप क्विकली मुझे सब लोग एक एक आंसर दीजिए. आप लोगों ने ड्यूरिंग काउंसलिंग अगर ध्यान दिया हो तो आई ऑलवेज मेक श्योर दैट आई रेकमेंड स्टूडेंट्स, इफ यू आर गोइंग टू दिस प्रोग्राम, आई थिंक दिस इज अ सूटेबल कंट्री. सो इफ आई स्टार्ट विद यूके, सो यूके की इकोनॉमी में आपको क्या लगता है कि किस टाइप के जॉब्स सबसे ज्यादा है, एंड व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स शुड लुक. जैसे इन केस ऑफ आयरलैंड, व्हाट आई एम अवेयर ऑफ कि वहाँ का आईटी बहुत स्ट्रांग है. आई मीन देयर आर many corporates, finance industry बहुत strong है, pharma बहुत strong है, so it's बहुत strong है. So if you are looking for job in any of these industry, Ireland is the country. UK of course बहुत बड़ा है, उसके पास सारे टाइप के हैं. तो अगर मैं शुभम और सोमिल से पूछूं, so if we start with Somil, so Somil, what do you reckon, what type of jobs are more available in case of UK as per your experience? Sir, according to my experience, I think IT के jobs
अभी आईटी यहाँ पे बहुत बूम पे है, एज वेल ओके एज कंस्ट्रक्शन, बिकॉज लाइक मेरी कंपनी अभी बहुत सारे स्टूडेंट अकोमोडेशंस के कंस्ट्रक्शन कर रही है अभी, और लाइक एज वेल एज वी आर बिल्डिंग अ रग्बी स्टेडियम इन डबलिन फ्रॉम नेक्स्ट अच्छा मार्च, सो कंस्ट्रक्शन एज वेल एज आईटी। ओके The ओके AI कंस्ट्रक्शन और आईटी AIML is also booming. AIML, neural networks, these things are going very high. तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो मेरे AIML और ये जो डेटा एनालिटिक्स वगैरह रहते हैं, डेटा साइंस पर्टिकुलरली, उसमें भी काफ़ी सारे जॉब्स हैं अभी। अगर मैं एंड सौमिल और शुभम आप दोनों से एक चीज पूछूं लोकेशन वाइज, मतलब जैसे मैनचेस्टर लिवरपूल हो गया, वो किसके लिए? जैसे मुझे पता है मैनचेस्टर में मीडिया सेंटर है बहुत बड़ा बीबीसी का, तो आई एम सॉरी यार। तो आई थिंक अगर आप जर्नलिज्म या वो किसी कोर्स के लिए हो तो वो एक बहुत अच्छा लोकेशन होता है। तो शुभम, इफ आई आस्क यू, सो अकॉर्डिंग टू यू, आईटी हो गया या बिकॉज आप आईटी वाले हो, व्हाट आर द बेस्ट लोकेशंस अक्रॉस यूके? so in Liverpool, I would say finance. Finance is good. अच्छा Plus construction. Construction is very, very good in Liverpool as well. ओके, एंड हाउ अबाउट आईटी? IT is good, but not you won't get a really big companies here. तो वो That's कहाँ it. पे है यूके Like में सबसे ज्यादा? London and other cities. लंदन। लंदन। ओके लंदन। बट उसका बेनिफिट ये है सर कि लाइक इफ यू आर इनटू आईटी और लाइक ऐसा कुछ भी जॉब, सो यू कैन डू लाइक वर्क फ्रॉम होम, बिकॉज मेरे बहुत सारे दोस्त हैं दोज हु गॉट द जॉब इन लंदन, राइट, इन आईटी में ही, बट दे वर्क फ्रॉम बेलफास्ट, सो द कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बिकॉज लाइक इफ यू विल कंपेयर द सैलरी ऑफ बेलफास्ट एंड लंदन, तो जैसे if you are getting paid like the starting salary over here is like 30K, right, but in London you'll get like 45K up to some extent। उसका जो cost of living है वो कहीं बहुत ज्यादा मैटर करेगा। so my friends, they are getting 45K over there, but they are living in Belfast, so like they हाँ are saving that way, so they do that thing as well। ऐसा, but ये कंस्ट्रक्शन में पॉसिबल नहीं है कि ये हाँ, वर्क ये फ्रॉम होम मिल आईटी वाले जाए। हर जगह ये, अपने, यस, सो इनको दैट्स फायदा वन ऑफ मिल द रहा है। मोस्ट बेनिफिट थिंग, मेरे को ऐसा लगता है। ओके, सो हम अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ओवरऑल यूके में, बिकॉज आप यू वर्किंग विद अ बिग कॉर्पोरेट, सो व्हाट डू यू यस, से, आई मीन व्हाट ऑल एरियाज आर बेस्ट? अभी मैं जो कंस्ट्रक्शन कंपनी में हूँ, सो माय कंपनी इज द बिगेस्ट इन ऑल ओवर द यूके, लाइक अच्छा, सबसे बड़ी कंपनी है यूके की। सो लकी यू यार। बट उसका ये है सीन कि लाइक मेरी कोई भी फिक्स सिटी नहीं है कभी भी। सो आई वाज लाइक फ्रॉम लास्ट 8 9 months आई वाज इन लंदन। मैं, मेरी कंपनी लाइक बेस्ड इन बेलफास्ट है, बट लाइक आई वाज इन लंदन फॉर अ प्रोजेक्ट। सो बट द बेनिफिट इज ऑल द होटल, फूड, कार एक्सपेंस, ऑल बाय ऑन कंपनी। द हाउस। 8 महीना, नाइस। So वो है, but like again I'm going Dublin in March for my rugby stadium project. So I'm gonna stay in Dublin for couple of months. I don't know कितना लंबा चलेगा project, but depending on that. So construction का ये कभी भी नहीं रहेगा कि like you have to stay in a same city unless and until you are on you are in the office, ऐसा। But मेरा office work मैंने लिया नहीं। I was like मेरे को project manage करना है site पे, so I'll do that only, ऐसा। मैं समझ थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, आपने तो भी Okay. कहा कि मुझे इंडिया वापस आना है। सर इवेंचुअली सर, अभी नहीं, बट लाइक आफ्टर 10 15 years तो वापस बैक टू फैमिली आना ही है फिर सर, तो नहीं आओगे, ऐसा। चलो फिर ठीक है, 10 15 साल तो बहुत दूर हो गए। हाँ, 10 15 साल बहुत, वो किसी ने देखे नहीं है, लाइक आई डोंट नो, लाइक कुछ हो जाए इतना अच्छा जाए कि लाइक वापस ना जाने का मन हो मेरा या ऐसा कुछ, बट यस, अभी तक का मतलब तो यही प्लान है कि लाइक। what I see from this side, I think you're doing a great job. थैंक यू सर। तो नहीं, ऐसा है बस। और अगर जैसे आपके दूसरे फ्रेंड्स हैं शुभम, जो कि इलेक्ट्रॉनिक से हैं या मैकेनिकल से हैं, तो व्हाट आर गुड प्लेसेस जो वहाँ पे है? सर एक चीज़ और सर, मेरी मेरी सिटी का बताता हूँ, बिकॉज मेरे से पोर्ट अटैच है लिवरपूल का। अच्छा तो वहाँ पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाले मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हायर होते हैं। प्लस ओके, में जॉब्स काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा चलता है। जी क्योंकि जी पूरा जी कहती हूँ वो यहाँ पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट और इंटरनल जो होता है, मतलब पोर्ट वाला तो होता ही है, जी, प्लस इंटरनल सप्लाई चेन चलता है, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। यार एंड वहाँ पे स्टोर्स चलते हैं, तो उनमें भी रिप्लेनिशमेंट और इन सब चीज़ों के लिए बहुत जल्दी जल्दी रोज़ चीज़ें आती हैं। तो वो चीज़ें इन्वेंटरी मैनेजमेंट वगैरह के भी रोल्स काफ़ी सारे रहते हैं।
Okay, okay. हालांकि वो हर सिटी Sapna, में रहते हैं, बट इट्स जस्ट यहाँ पे पोर्ट है तो इट्स अ गुड एडवांटेज की, और पोर्ट काफी ज्यादा बड़ा है, काफी बड़ा है, hmm. तो And उस एडवांटेज है वहाँ वो पे सप्लाई। एडवांटेज है वो। ओके, तो ये पॉइंट हम लोग ध्यान रखेंगे कि इफ यू आर सजेस्टिंग एनीवन, बिकॉज वी डू रेकमेंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट टू मैकेनिकल स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स, so I think we can definitely recommend Liverpool. Somil, I wanted to come on one very important thing that's Sorry to interrupt, sir. Sir, like I have to do masters in supply chain management. So sir, जैसे भैया ने अभी कहा कि लिवरपूल अच्छे सजेशन है, तो सर यूके में और कौन-कौन से एरियाज है जहाँ पे मैं अप्लाई कर सकती हूँ? Ananya. I think Yes, what sir. we'll do is we will have this question and answer once we are done with the session. Is that fine? Otherwise, if Yeah, sure, everyone is sir. going to ask questions, तो वो फिर हाँ गड़बड़ हो हाँ, जाएगी. sure, sir. Okay, Okay. thanks, Ananya. Okay, sir. Thanks for Thank you, sir. understanding. So, Somin, you mentioned कि you have some sponsorship. You don't have PSW. You have some sponsorship. So some uh, lucky thing that you have. So we want to understand that. Yes, so मेरे कोर्स में ऐसा था कि like if you get internship before certain period, right? तो then like आपका 1 साल का और वीजा एक्सटेंड हो जाएगा, like 2 years of Hmm. वीजा. तो जब मेरे को कंपनी ने जॉब ऑफर करी थी, तो दे डोंट प्रोवाइड एनी इंटर्नशिप, सो आई जस्ट आस्क देम के don't provide me internship, just write a letter that I can provide in my university saying that like I'm doing an internship over here. So जो भी मेरा role था, that role's gonna stay same, salary is gonna stay same. It just that one letter they provided to my university saying that like ये internship कर रहा है. So that make क्योंकि कोई भी कंपनी आपको डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप कभी भी नहीं करेगी अनलेस एंड अनटिल अगर आप कोई लाइक वेरी लाइक यूर लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट ना हो जब तक. एक्सेप्ट कर लो ना, हो तो इसीलिए हाँ, है, अब ठीक मैं है. हूँ भी नहीं, इतना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है भी नहीं नहीं नहीं, अपन अब हो में. इसीलिए एक्सेप्ट कर लो उसको. नहीं नहीं. फिर क्या हुआ? सो दे सेड कि लाइक 1 साल वो आपको चेक करेंगे पहले, लाइक आपका वर्क एंड ऑल, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस दे विल प्रोवाइड यू द स्पॉन्सरशिप ऐसा. सो इट टुक लाइक या 6 महीने का तो प्रोविजन पीरियड होता है, एंड आफ्टर दैट दे प्रोवाइडेड मी लाइक के हाँ ठीक है, लाइक whenever the time is here then we'll provide you the sponsorship. So मुझे PSW अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी थी उसमें ऐसा. तो So स्पॉन्सरशिप के after my student बेनिफिट्स क्या visa, होते हैं? sorry स्पॉन्सरशिप के बेनिफिट्स क्या होते हैं? सर, स्पॉन्सरशिप के बेनिफिट्स क्या नहीं होते? ये पूछो क्या नहीं होते सर, वो लाइक सो अब मेरे को 1.5 साल हो गया स्पॉन्सरशिप पे. सो लाइक अगेन लाइक आफ्टर 3.5 years मैं ILR अप्लाई कर दूंगा. सो आई डोंट नीड एनी वीजा आफ्टर दैट के यूके में आने के लिए कोई वीजा चाहिएगा. लाइक आई विल हैव माय ILR इनफाइनाइट लीव टू रिमेन, बट अगेन आई कैन नॉट लीव द कंट्री फॉर अबाउट लाइक 180 days. उससे ज्यादा मैं कंट्री छोड़ नहीं सकता. सो लाइक एक बिग स्टेप्स टुवर्ड द ब्रिटिश सिटीजनशिप ऐसा. सो दैट्स द थिंग. और अगर आपके स्पॉन्सरशिप नहीं है देन यू हैव टू गो बैक टू इंडिया, यू नो दैट. सो I know ये तो that, and that's the reason I wanted you to elaborate on this, क्योंकि ये तो शुरू लेना से ही है. क्वेश्चंस होते हैं कि सर यूके में सेटल नहीं हो सकते, ऐसा सुना है, और बहुत मुश्किल है, वहां पे रुक नहीं सकते, स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है. तो आई थिंक यू आर द आंसर फॉर इट. इट्स जस्ट लाइक यू हैव टू प्रूव कि हाँ आप एक बेनिफिट एसेट हो आपकी कंपनी के लिए. सो दे विल ऑफ बस कोर्स दे गोना डू द स्पॉन्सरशिप ऐसा. सो ये आप मेरा दूसरा स्पॉन्सरशिप है. आई मीन लाइक जो मेरे को पहला मिला था वो मेरी पहली कंपनी से था, देन आई स्विच द कंपनी, और ये मेरे को दूसरी से मिला है अभी ऐसा. तो दैट्स गुड. देखो यार, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, इस बात को समझो. It is not like Canada or Canada that they are giving away PR to everyone. If UK is not giving sponsorship to every second student, it's good for you. You need to prove yourself, और इससे वहां पे जॉब मार्केट भी बचा रहेगा. जो भी कनाडा का क्रैश कर गया है इतनी बुरी सिचुएशन में, वो इसीलिए क्योंकि दे हैव गिवन वर्क परमिट और स्टे बैक टू एवरी सेकंड गाय, एंड दैट्स द रीजन कि सारी चीजें खराब हुई. सो उस नजर से अगर मैं देखूं, तो यू प्रूव योर स्किल्स, एंड इफ यू आर रियली वर्थ, the country will let you definitely live there for the rest of your life. So it depends, yeah, मतलब how we want to see it and how we want to work hard for it. मैं एक और एक्सपीरियंस मेरा शेयर करना चाहूंगा इसमें कि लाइक Please. मेरी कंपनी में ही मेरा एक दोस्त था. लाइक डीमोटिवेशन के लिए नहीं, इट्स जस्ट लाइक यू हैव टू प्रूव एंड यू हैव टू वर्क हार्ड. लाइक आपको कभी भी जी, कोई भी चीज लाइटली नहीं लेना इधर आने के बाद. बिल्कुल. तो लाइक वी वर वर्किंग टुगेदर, वी वर लाइक बैचमेट्स, और हमारा एक ही कंपनी में हुआ था. मुझे स्पॉन्सरशिप उसके पहले मिल गई थी, बट ही हैज टू अप्लाई फॉर PSW क्योंकि उसको नहीं दिया था ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, राइट. बट अभी उसका जनवरी में खत्म होने वाला है, बट Okay. कंपनी ने उसको वेव ऑफ कर दिया बिकॉज ऑफ हिज lack of awareness, or like he's taking things very lightly. So Hmm. he was about to get the sponsorship, but the company took the step back. Okay, like no, we are not happy with your performance. So like you can face those things as well, but like
You have to work hard. बस That's it. सिंपल सी बात है, स्किल्ड हो तो आप रुक सकते हो, नहीं हो तो नहीं रुक सकते हो। एंड आई थिंक अमीशा ऑल्सो प्रूव द सेम थिंग कि एचआर में एक्सपीरियंस हो या नहीं हो, अगर उनको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, अपन ने प्रूव किया जस्ट वो 2 महीने की इंटर्नशिप से, सो यू हैव इट। So now I'll switch to Ireland because there are a lot of students who are eagerly waiting and getting messages, DJ. So Amisha and Asad, I wanted to understand what type of industries are there mostly in case of Ireland, and the type of job opportunities primarily in case of Ireland. I guess IT, first of all, is very booming. बहुत ज़्यादा jobs हैं. Like one of my friend, like my flatmates, just recently got into Amazon. And opportunities बहुत हैं. But if I look into management role as well, like whether it be marketing, sales. So one of my flatmates just got a job as a BDE. So it's also about how active you are and how actively you are applying on jobs. Jobs सारी हैं. It's not that कि if I search about sales executive or finance, there won't be any jobs. But it just, I will also tell you how the market really works, why you get rejections. So when I entered into the HR thing and when I literally saw how the system works, so it's like if I post a job today in the evening, like around 7, and tomorrow morning I will have like around 150 applications, but my head HR wants just one applicant from all those 150 applications. Now even if I close the job posting, still I have to send rejection emails to 149. There will be only one person who will be moving ahead. So it's like everyone is looking for job here. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिटरली लास्ट ईयर से हैं, उनको अभी तक जॉब नहीं मिली है, दे आर स्टिल लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज. सो द जॉब आई गॉट, आई लिटरली अप्लाइड अराउंड 2:30 बजे रात में. आई केम फ्रॉम अ पार्टी एंड वो जॉब का स्ट्रेस रहता है कि यू हैव टू अप्लाई डेली, डेली का टारगेट होता है. तो आई अप्लाइड दैट जॉब रात में एंड सुबह आई गॉट अ स्क्रीनिंग कॉल की. And I was like, okay. So it's very random. It's not about ki you are very bright student or something like that. You have to be very active. You have to network. When you apply for a job, you have to message the HR that you have applied for this role. Get your name into the HR head that, yeah, there is this person who reached me on LinkedIn, has applied for this job. Because after 100 applications, it's very hard to get into any, like, मैं वो jobs apply नहीं करती, इसमें 100 applications reach हो गई हैं. It's like no use. So posting हुई 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, you start applying. I even applied for marketing roles, but I was very clear कि मुझे grad में नहीं जाना है, मुझे चाहिए तो experience role ही चाहिए. Because I have confidence कि मैं prove कर लूंगी कि मेरे पास है ऐसे experience. और HR somewhere is management level role, और मैंने marketing, client management, people related work. Yeah. Basically, you want to say that you got to be very proactive. You can't really wait for a day कि वो जिस दिन मेरे अंदर मतलब ऐसा time आएगा तो I'm going to do that. So the time it is posted, you have to really apply and get it sorted. ऐसा नहीं है कि 4 दिन की वो पुरानी posting देख रहे हैं तो वो हो रहा है. अभी भी I got rejection messages over emails क्योंकि मैंने इतनी jobs apply करके रखी हैं. So something will, but हाँ, you have to be active and keep applying. Amisha, how big, or Asad, are you there by any chance, or you? Yes, sir, I'm still here. So असद और अमीशा, आप अगर दोनों बताओ, because असद आप कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से हो, इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं. How big is the IT industry in Ireland? सर IT इंडस्ट्री सर मैं ये बोलूँगा काफ़ी बड़ी है, और अल्टीमेटली उस पर बात आ जाती है कि अगर आपको पता है आप क्या कर रहे हो, अगर आपके पास स्किल्स हैं, एक्सपर्टाइज है, तो आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी. कोई नहीं रोक सकता आपको जॉब ना मिलने से. Okay. ये जी सर ऐसे ही है. और मुझे तो सर कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था सर इंडिया से. मतलब मैं ऐसी फ्रेशर गया था, और मेरे पास काफ़ी मतलब 3 इंटरव्यूज हुए मेरे अभी तक फिलहाल में. और सर यही है सर, बहुत बड़ी IT इंडस्ट्री है, काफ़ी जॉब्स हैं, और आपको बस बहुत ज़्यादा स्किल्ड होना पड़ेगा. और चीज़ें ऑलरेडी हैं वहाँ पर. आपको अगर जॉब्स IT में देना है तो चीज़ें ऑलरेडी हैं, जैसे DSA, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, आपको सॉलिड करना है. आप इंडिया अगर आपके पास टाइम है और आप आ रहे हो आयरलैंड, तो DSA आपको स्ट्रॉन्ग करना है, और आपको CS फंडामेंटल्स थोड़े और स्ट्रॉन्ग करने हैं. और सर बस यही है. और बाकी जो आप मास्टर्स अच्छे से करो और जॉब्स पे अप्लाई करो, जॉब्स मिलेंगी सर आपको.
मैं इस पॉइंट को इसलिए बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम आई टेल स्टूडेंट्स who are planning to take up their studies from the US. I always recommend कि आईटी का आयरलैंड भी, सॉरी, आयरलैंड में आईटी नहीं बोल रहा हूँ ना मैं, आईटी जी आयरलैंड में, सही। हाँ, नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अप्लाई करो, देयर आर मेनी कॉर्पोरेट्स। तो आप दोनों अगर बोलेंगे तो वाउच करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा आसान होगा, इसलिए आई वांटेड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द जॉब सीन एंड हाउ बिग इज द आईटी डिपार्टमेंट। I guess it's one of the top one in Ireland. ओके, इवन सर आईटी से भी हटके जैसे मेरे दोस्त काफी सिविल्स में भी हैं और मैकेनिकल में भी हैं, तो जी, सिविल और मैकेनिकल का भी जो मार्केट है वो भी काफी अच्छा चल रहा है। आईटी को मतलब लेके साथ में चल के तो है जॉब्स हैं सर, यहाँ पर आईटी में भी हैं और बाकी ब्रांचेस में भी हैं जॉब्स। जी, जी, जी। आई एम सॉरी, अब बीच में आई जस्ट हैव टू से अ क्विक थैंक्स टू शुभम बिकॉज ही हैज अ शिफ्ट, so he has to leave, so we'll have to say a big bye to him, and thank you, Sure. Shubham, for Thank you so much, sir. all the insights. And Somil definitely would want to come and party in Liverpool because he can see that it is very reasonable to party in Liverpool. Yes, first time. सर इधर बेलफास्ट में तो मेरी ही पार्टी ऑर्गेनाइज होती है, तो मैं तो बेलफास्ट छोड़ के नहीं जाता कहीं। But Shubham, it was great. We Thank you wish for you all the having very best, and आपका job hunt अब start होने वाला है, so आप go उसके to लिए the खूब shift सारी for मेहनत करें। picking up the bus. That Exactly. And there is Amisha who can help you, and there is Somil who can give yes, you some reference. So maybe you can get in touch, guys, with each other on LinkedIn. So that will be helpful. Or Baki sure. Somil, I have a couple of students who have jobs in the IT in UK. So maybe I'll try and connect you with them. So I'll ask Faisal. So he'll share some 100% सर, LinkedIn profiles. नो प्रॉब्लम, ठीक है Sir, in 100%। शुभम? class, just one thing that जी। don't underestimate the assignments. Like, don't leave it for just last day. Sometimes, oh, just last thing. ये टिपिकल इंजीनियर बोला आरजीबीवी का कि लास्ट डे के लिए मत छोड़ो। बिकॉज मैंने छोड़ा था तो वो एक दो मैंने स्टार्टिंग में जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें जी, मैंने बहुत लाइटली लिया था, तो उससे उसकी वजह से 1-2% से जब डिस्टिंक्शन छोड़े आता है तो फिर वो बहुत डिस्टिंक्शन मिलना ही बहुत टफ है, इट्स नॉट वेरी इजी। आई नो। 150 लोगों की क्लास में मेरे को 7 या 8 लोगों को डिस्टिंक्शन मिला है बस। इट अच्छा, मीन्स 70% अबव। जी, जी, जी। तो इट्स वेरी टफ। दैट इज अ टिप फॉर द डे, अपना वो नहीं छोड़ने का है, असाइनमेंट्स लास्ट डे पे नहीं करने का है, बिकॉज हम हिंदुस्तानी हैं, नो ऑफेंस, बट हम लोग सब चीज लास्ट मोमेंट पे करते हैं। मतलब 2 दिन पहले भी कर लोगे हो जाएगा, जी। नॉट लास्ट डे। 2 days are enough sometimes, but not just last day. चलो चलो, दैट्स Okay. ग्रेट यार। Thank तो you so much. थैंक यू शुभम। Thank सो you so much. थैंक्स बडी। So I'll come quickly because I'm sure आप लोग को भी जाना होगा, weekend है। So I'll come quickly on the another issue that I wanted to discuss. Shubham, आप जा सकते हैं। Thank you very much. So Thank I you. wanted to understand one last thing, and that is, Ananya, I know you have lot many questions. Give me 2 minutes, last 2 minutes, please. So I have few more questions, as in few more tips जो आप लोग देना चाहें, अमीशा, सोमिल एंड असद। जैसे मैं ब्रीफ करता हूँ कुछ टिप्स जो आप लोगों ने दी, अमीशा के बहुत वैलिड पॉइंट्स थे। डोंट rush for a part-time job. You will take some time. I think Somil will Yeah, also agree with me, I agree, and sir. Asad will also agree. I Enough? agree, sir. Absolutely, sir. Yes. Absolutely. Because when I meet a student, his first question is, "Sir, part-time कब तक मिलेगा?" So be mentally prepared. I believe for how many months? What do you guys say? For 2 months sir, I would say। Yeah, ठीक है, Yes. सोमिल? सर यस, 1-2 महीना तो लग जाता है। for 2 months तो easily. Again, like how you approach depends, like how you approach एग्जैक्टली part time देखो, again. And if you, जी, बोलो sorry, बोलो sorry, बोलो। आप बोलिए सर। नहीं नहीं, नहीं बोलिए नहीं नहीं, बोलिए। बोलो 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 बोलो। नहीं मैं, that's what, like again you, how you approach, or like uh, आपको आप like you should not be like too picky कि मैं ये पार्ट टाइम नहीं करूंगा, मैं ये पार्ट टाइम नहीं करूंगा। like you have to bend yourself whenever you go, like out of your country के हाँ ठीक है अब करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा ऐसा। so बिल्कुल बिल्कुल। depends on that। पार्ट टाइम की या फुल टाइम की, जो मुझे एक टिप है वो सिर्फ एक ही है, दैट यू हैव टू बी स्ट्रीट स्मार्ट। Yeah, दैट्स इट। उसके लिए कोई नॉलेज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इट्स जस्ट दैट हाउ यू अप्रोच द जॉब, इट्स ऑल अबाउट दैट। यू गॉट टू बी स्ट्रीट स्मार्ट। रेज्यूम होना चाहिए, उनको क्या सुनना है आपको वो जाना है, वो तैयारी करके, भले वो पार्ट टाइम ही क्यों ना हो। बहुत ही बेसिक, जैसे शी सेड शी वर्क विद अ फार्मेसी स्टोर,
he just wants to understand कि आप client relationship में कैसे हो. That's about it. So this is what I personally feel. इसके अलावा मुझे आप एक चीज बताओ, जो एक्सपेंसेस की बात होती है, आई मीट स्टूडेंट्स, ये हमारे चाचा के भैया गए थे और पड़ोसी गया था, एंड दे आर सेइंग कि वो तो 3 लाख रुपए खर्चा हो रहा है उनका महीने का, 2 लाख रुपए खर्चा हो रहा है. You guys really feel that's practically possible? I mean, if you party hard and drink every day. Depends on your lifestyle, sir. Depends on your lifestyle. Yes. But see, when I was a student, right? So, मेरा hardly 900 pounds, 1,000 pounds per month. That's it. Like वो भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ. Like it's, I don't think so. वो कभी इतना गया है ऊपर, including my rent and everything, right? Party, rent and everything. But अब थोड़ा सा ज़्यादा है. So, like again, like you. Exactly. Now you're making money, so definitely you Yes. can. But as a student, I don't think that's average. किसी भी country का मैं देखूँ तो 800 से 1000 is your average. Average, yes. आज भी, Amisha, how yeah. about you? Living in an expensive city, 800 से 1000? That's I beyond guess, that. yeah, I mean, मेरा rent in a sharing room used to be around 700 to 750 euros. ठीक है. And because I used to live in South Dublin, जो काफी ज़्यादा posh है and सारी चीज़ें बहुत accessible हैं. But if I talk about if I go to extreme north, तो rent थोड़े reasonable हैं, but then you have to have a car or something because you can't commute. If public transport भी इतना नहीं है, तो rent around, if you say 700, then with electricity and all, 750, 770. Then personal expenses, I guess it will cross 1,000 for me. It will come around like 1,200 or something. Max 1200 अगर आप बहुत ज्यादा high end रहते हो, आप डबलिन के साउथ दिल्ली में रहते हो, है ना? So you're gonna spend roughly around 1200, not more than that, right? Yeah. Asad, how about you? 1000, आपने जैसे बताया on campus, if you say Sir, I was trying to save a lot of money, to be honest. I just got a bit stingy there, and so for me the rent is 450, and for the groceries, what I did is like I used to divide groceries between my roommates because I just got lucky that my roommates were so nice, they were so friendly. As you know, like Zad went with me, so you know, and there I met with two other fellas who were living in the same house, and we just built the connection, and we used to buy the groceries all together. So you know, so even the money just got directed from this. So in terms of groceries, I used to spend like between 50 to 100 euros because we were all sharing. For the rent, it's 450. So it all together for me is like 600 euros. काफी सस्ता है. Sir, जुगाड़ sir, you know, sir, जुगाड़ उठाई sir मैंने. And you know, everything is just about जुगाड़. I would say जुगाड़ सर, जहाँ भी आपको दिख रहा है, जहाँ भी मतलब कुछ मौका मिल रहा है सर, मैंने वो करा और मतलब काफी अच्छी सी जिंदगी निकली सर, मेरी सुकून से निकली और काफी पैसा भी बचा सर. ऐसा नहीं है, मतलब 1000 यूरोस, यू नो सर, डबलिन में रह रहे हो तो मैं बोलूंगा 1000 यूरोस आपके खर्च हो सकते हैं, बट इसलिए मैंने रिकमेंड करा है कि छोटी सिटीज में जाओगे, लिमरिक वगैरह में, तो आपको ऐसे रूम्स वगैरह भी मिलेंगे. तो पर्सनली मैं तो 450 यूरोस दे रहा हूँ और लोगों को मैं बताता हूँ 450 यूरोस में दे रहा हूँ रेंट, तो लोग काफी शौक हो जाते हैं जो डबलिन वगैरह में रह रहे हैं. तो इसलिए मैं रिकमेंड करा मैंने कि लिमरिक, गॉलवे जैसी छोटी सिटीज में जाओ और आपको पे रेट उतना ही मिल रहा है जितना डबलिन वालों को मिल रहा है, और काफी चीप लाइफ स्टाइल है, अफोर्डेबल है और ब्यूटीफुल भी है. और लास्ट, पढ़ाई के लिए क्या टिप है? सर पढ़ाई के लिए सर यही टिप है कि आप अभी आपके पास टाइम है तो आपको डीएसए बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स. सिर्फ यही है, डीएसए बहुत स्ट्रॉन्ग करो. और अगर आप जाओ वहां पर, जो आपके टीममेट्स होंगे, तो जस्ट डोंट गेट इट टू पर्सनल. डोंट जस्ट यू नो fall in their personality. If they are too good to you, it doesn't matter. You just need a good teammate who knows things, who have experience. जो अच्छा बंदा है, जो जानता है चीजें, उसी के साथ टीम्स बनाओ अपनी प्रोजेक्ट्स में. और क्योंकि मेरे साथ हुआ, मतलब मेरे दोस्तों के साथ हुआ कि वो मतलब उनके फ्रेंड्स थे, उनके साथ उन्होंने टीम्स बनाई और वो उनको बैक्स लग गया, वो फेल हो गए सर सेमेस्टर में. तो ऐसा मत करना. तो अगर बंदे की पर्सनैलिटी भी अगर अच्छी नहीं है, वो अच्छा इंसान भी नहीं है, अगर आपको लग रहा है ही इज सेल्फिश और ब्ला ब्ला ब्ला, पर्सनल मत जाओ. उसका देखो कि वो कितना जानता है और कोशिश करो कि टीम्स अच्छे बनाओ, और बस सर सब कुछ हो जाएगा फिर. सर मुझे लगा कुछ पर्सनल हो रहे थे यहाँ पे किसी के लिए. ऐसा देखा मैंने, अपने आप पर्सनल बता रहा हूँ, मैंने बोलना अपने नहीं. फ्रेंड्स का देखा तो वही एक्सपीरियंस बता रहा हूँ बस आपको मैं.
ठीक है। और सोमिल, हाउ अबाउट यू? पढ़ाई के लिए क्या टिप है आपकी? एंड बिकॉज यू हैव मैक्सिमम वर्क एक्सपीरियंस, सो आगे बढ़ने के लिए, जैसे आप आगे भी बढ़ते चले गए, तो उसके लिए क्या टिप है आपका? सर पढ़ाई के लिए तो यही था कि लाइक वी हैड असाइनमेंट्स राइट, सो जस्ट डोंट ट्राई टू कॉपी फ्रॉम एनी अदर, लाइक जस्ट ट्राई टू बी व्हाट यू आर, लाइक आप अपना खुद का असाइनमेंट्स लिखो, दैट्स इट। और आगे बढ़ने के लिए लाइक यू जस्ट कीप अप्लाइंग, लाइक मैंने अभी भी अप्लाई करना बंद नहीं किया, स्विच करना बंद नहीं किया कंपनीज में, सो That is आई like जस्ट कीप 600 euros स्विचिंग। per month. किसी का माइक ऑन है शायद, प्लीज। तो जी। हाँ, कि लाइक कीप स्विचिंग और जस्ट ट्राई टू गेट इन्वॉल्व इन वर्क, लाइक कि तुम कैसे क्या कर रहे हो, दैट्स इट। सो दैट्स इट। एंड अपने जॉब में कैसे आगे बढ़ना है? जॉब में वही वही जैसे कि जो आप पहली कंपनी में थे, तो मैंने स्विच करके मेरी पोजीशन बड़ी ऊपर आया, फिर देन अगेन आई एम लुकिंग फॉर अनदर अनदर रोल ऐसा। सो लाइक आई हैव एक्सपीरियंस इन लाइक डिफरेंट रोल्स इन माय कंस्ट्रक्शन कंपनी ओनली ऐसा। तो इफ यू लाइक हैव, और हाँ, जैसे इधर अभी एक चार्टेड शिप करके चीज है, आई डोंट नो लाइक व्हेन आई वाज इन इंडिया, मेरे को इसका बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, जैसे चार्टेड शिप होती है इंजीनियरिंग की, तो अब मैं उसमें भी आया हूँ आगे, तो उसमें मैंने अभी अप्लाई किया है रोल के लिए। सो लेट्स सी, Okay. उसका भी एग्जाम्स होते हैं, सो लाइक यू बेसिकली आपका पे स्किल अच्छा हो जाता है उससे ओ, ऐसा। सो मतलब दैट्स अ डिफरेंट थिंग। कंटिन्यूअस ग्रोथ के लिए मेहनत यस, करते जाना है, करते मेहनत, जाना है, यस करते यस जाना है। यस, सो लाइक मास्टर्स के बाद यू यू शुड नॉट स्टॉप आफ्टर द मास्टर्स एज वेल। तो मेरा वो चार्टेड शिप अब चालू होने वाला है, सो नेक्स्ट ईयर से। Okay. Great, तो देखते great. हैं। And Amisha? फॉर मी आई गेस एचआर मेरा फर्स्ट मतलब ऐसी फुल टाइम जॉब है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है एचआर में। सो मैंने ऐसा सोचा है कि फॉर द फर्स्ट इनिशियल 6 months to 1 year आई विल गेन एक्सपीरियंस, आई विल लर्न ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एचआर एंड उसके बाद आई विल मेक अ स्विच, Switch to बिकॉज what? switch to HR role only, but in a हाँ, more managerial position. okay. Because of course you have to prove what all you have learned. And अभी जो मुझे space मिला है वो काफी अच्छा है, क्योंकि the VP is asking me to learn everything and then just tell her what I am comfortable moving ahead with, whether it's recruitment, performance, reward and management. I So think I ये guess बहुत कॉमन होता है वहाँ पे। If I'm not wrong, सोमिल और अमीशा, आप एग्री करोगे? where you feel confident about growing. हाँ, So it's like that thing. They don't force you know you have to do recruitment or एग्जैक्टली। सोमिल भी आई थिंक एग्री करेगा इन चीजों से, कि वहां पे ऐसा नहीं होता है कि इसके लिए आया तो यही करना है। They want you to understand, and wherever यस you are comfortable, you feel that you can give your best, यस, तो yeah. आप कर सकते हो। आई वॉज अबाउट टू से दैट पॉइंट इसके बाद ही सर, कि जी। जैसे अभी से भले मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, बट लाइक इट्स नॉट फिक्स के मुझे सिर्फ यही काम करना है। सो इफ देयर इज अ प्रेशर ऑन आवर कंपनी, और लाइक कोई एक डिपार्टमेंट है जिसपे प्रेशर है, सो दे हैव आस्क्ड मी लाइक मेनी टाइम्स कि लाइक कैन यू डू BOQs, जो बिलिंग ऑफ क्वांटिटीज होती है वो कर दिया, या कैन यू वर्क ऑन दैट सॉफ्टवेयर टू गेट दैट ड्राइंग सॉर्टेड, या इफ आई नो द सॉफ्टवेयर और मैं साइट पे हूँ, लाइक इट्स एन इमरजेंसी, सो आई कैन सॉर्ट इट आउट माई सेल्फ। सो लाइक you have to have knowledge of every field in your construction company ऐसा। so like we have like very different fields in the construction as well। तो बस वही एक like आप किसी भी एक चीज पे बाउंड नहीं हो, like you have to do multitask ऐसा basically। एग्जैक्टली। हमेशा आप भी एग्री करते हो? एकदम हाँ, मतलब ये मैं ये स्टूडेंट्स को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये लोग सिर्फ एक विजन से अभी पूरे प्रोसेस को देखते हैं कि मेरे को ये यूनिवर्सिटी मिल रही है क्या, मैं इस कोर्स में जा पा रहा हूँ क्या, बस इसके अलावा दे डोंट थिंक एनीथिंग। आई थिंक ये सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन है टू दैट फॉरेन लैंड, जो आपका मास्टर्स है। yeah, true. yes उसके बाद रियल फाइट शुरू होती है, और उसके लिए आपको स्किल्स डेवलप करना उस एक साल में है। वो मास्टर्स डिग्री होने से, वो डिस्टिंक्शन होने से ही कुछ नहीं होगा। यू हैव टू डेवलप अपने आप को बहुत सारी चीजों में। Yeah. yes sir। So last में there are few questions, like someone wants to ask Amisha D. I have applied to UCD for supply chain management and have given my interview online. अरे questions मत लिखो, ऊपर नीचे हो रहा है। So कहाँ गया यार? हाँ, so I've given my interview online and I want to how you managed for transportation from Dublin airport and how to proceed with the SIM and all. SIM, they are not the right people. Faisal will tell you, Ananya, about the SIM. Transportation आपको बताना तो quickly बता सकते हो. I think you can take a cab or maybe you can come by metro, right? तो ट्रांसपोर्टेशन डबलिन का ठीक है, मतलब आई वोंट से बहुत अच्छा है, बट एयरपोर्ट से एक एयर कोच बस भी चलती है दैट कम्स टू द सिटी सेंटर एज वेल एज साउथ डबलिन में, सो यू हैव टू बुक Okay. इट ऑनलाइन।
So I would suggest book it online क्योंकि उसमें student discount लग जाता है and you can Oh, take it there as well. But sometimes you don't get a ticket क्योंकि वो completely packed होती है. So it's better you okay. book it online, get the discount तो half price में मिल जाती है around 6 euros and then yeah आप आराम से आ जाते हो. आप लोग का ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत सस्ता है यार. दी आई वांट टू Yeah. आस्क कि मतलब आपने एयरपोर्ट पे जाकर ही बुक किया था या फिर ऑलरेडी इंडिया से बुक किया था? क्या सिम? नहीं नहीं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जैसे आप On बसेस का बता रही हैं. So यार एयरपोर्ट में जब मैं गई थी so there was this person known person डबलिन में मेरे तो he came and then we booked a cab only. बट मैं सजेस्ट करूंगी वो डिपेंड भी करता है एयरपोर्ट से कितना दूर रह रहे हो क्योंकि यहाँ कैब के प्राइसेस काफी ज्यादा हैं एंड अभी जैसे आप नए होगे डबलिन में सो आई वुड रियली सजेस्ट एयर कोच कर लो. सो एयर कोच में कुछ नहीं करना है, जस्ट टू गो एट देयर वेबसाइट एंड जस्ट बुक इट. बहुत ही सिंपल होता है एंड इफ यू वांट मैं लिंक भेज दूंगी आपको अगर आप मुझसे लिंक्डइन में कनेक्ट हो जाओगे एंड हाँ इट्स नॉट दैट एयरपोर्ट से ओके, थैंक यू सो मच. ठीक है. यहाँ पे एक स्टूडेंट है सौमिल, आपके लिए क्वेश्चन है. जतिन इज अ वेरी क्यूरियस गाय. ये जा यूएस रहे हैं बट इनने Okay. ये सेशन भी अटेंड कर रहे हैं. इनका वीजा आ गया है तो Okay. इन्होंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा है. आई हैव वन क्वेश्चन फ्रॉम सौमिल. कैन आई वर्क इन कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट आफ्टर परसुइंग मास्टर्स फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग? शायद ऐसा होगा. 100%. 100%, sir. So, like as I was saying, मेरी company जो है FU McCann's है. So it's the biggest, right? So we have employees from all over, like all over the field. Like we have IT employees, we have like to handle like our IT stuffs and all, right? So ऐसे बहुत सारे like in from different fields. We have mechanical engineers, we have civil engineers, or transportation engineers भी है to look after all the transport because we produce precast concretes, right? तो उसको transportation engineering भी लगती है. So yes, I think by you can work in the construction field after transportation engineering, and it's a good scope as well क्योंकि अब जो मॉडर्नाइजेशन जो हो रहा है वो मोस्टली प्रीकास्ट का ही हो रहा है. एज यू सी लाइक जो भी स्टूडेंट अकोमोडेशन बन रहा है या जो भी बिल्डिंग्स बन रही है, ब्रिजेस, एनीथिंग, सब प्रीकास्ट का ही बन रहा है. सो दैट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी आई थिंक तो ट्रांसपोर्टेशन जब इंजीनियरिंग का. जतिन अभी भी टाइम है, अगर यूएस जाना है तो सॉरी यूएस छोड़ के यूके यूके चले जाओ. नहीं नहीं, यूएस में भी सर अच्छा स्कोप है इसका, बहुत बढ़िया स्कोप है. हेलो. यस नहीं भाई. नहीं, हाँ सौमिल ब्रो, एक्चुअली मैं ये पूछ रहा था कि ट्रांसपोर्टेशन से सपोज मैंने मास्टर करा तो यस मैं कोई कंस्ट्रक्शन में पर्टिकुलर जॉब करना हो उसके लिए पूछ रहा था. इट्स नॉट अबाउट कि मैं रोड कंस्ट्रक्शन में जाना चाहूँ. जैसे मेरा एक्सपीरियंस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का है, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, यस यस तो मैं उसी में ही जाना चाहता हूँ. वो तो अनफॉर्चुनेटली उसमें ब्रांच नहीं मिली, वो ट्रांसपोर्टेशन वो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, कंस्ट्रक्शन में. तो मैं भाई इफ यू ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूँ. यस भाई इफ यू हैव एक्सपीरियंस राइट, और हाँ. अगर आप जो भी लाइक इंटरव्यू में आप कोई जो भी रोल के लिए आप अप्लाई करते हो, सो लाइक इफ यू हैव एक्सपीरियंस और इफ यू हैव अ नॉलेज राइट, तो आई थिंक यू कैन गो इनटू द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वेरी इजीली ऐसा. ओके ओके, ठीक थैंक है. Thanks, Jatin. I have another question. I just wanted to know about the little bit overview of academic assignments, like what kind of they are. ठीक है. वेदांश का क्वेश्चन है, if you are going to UCD for MSN, मैंने माइक ऑन है ना? हाँ, MSN Business Analytics, taking a loan for the same. Can someone get a job there as a fresher, and how much time will it take for him or her to repay the loan? Depends upon the student. And if you have to come back to India after MS, what is the salary? What kind of jobs can we get? तो ये लोग दोनों कोई भी आंसर नहीं दे सकता बिकॉज ये लोग कोई भी इंडिया वापस नहीं आए हैं. एंड आई थिंक इफ यू कम बैक विद a couple of years of work experience, then of course that will be much better, and that's what these guys are targeting. And is taking a loan as a fresher and going to UCD for MSBA is worth. Amisha, so you answer that. So my roommate did her master's in BA from UCD. So इंडिया में उसको एक्सेंचर में एक्सपीरियंस था एंड TCS में तो अबाउट 5 years ऑफ एक्सपीरियंस. सो जब वो आई थी तो उसको कहीं ना कहीं ऐसा श्योरिटी थी कि शी विल गेट अ जॉब रियली सून और काफी एक्सपीरियंस रोल में उसको जॉब मिल जाएगी. बट इट्स नॉट द केस. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु केम एज फ्रेशर्स इन BA एंड हैड सिक्योर्ड अ जॉब. I told you have to be very active. That is the first thing. Experience does matter, but then I told you applications का यहाँ क्या सीन होता है that
we don't screen all the resumes. So sometimes it's also about कि कितनी जल्दी आपने अप्लाई करा है एक रोल के लिए. Also take opportunities like internships, बहुत सारी unpaid internships होती हैं, just get into it. And I would strongly suggest as a fresher, I do understand that जब आप एक foreign land में enter करते हो, so you get part time, you start earning money in a different currency. And then there are many of the students who just get into part times. They do two part times. एंड अगर आप 2 पार्ट टाइम्स कर रहे हो देन दे बिकम वेरी मनी माइंडेड कि नहीं यार पैसा तो आ रहा है. बट एट द अल्टीमेट गोल आपका यही था आफ्टर मास्टर्स, आपको जॉब उस डोमेन में चाहिए. लाइक डेस्क जॉब इज व्हाट इंडियन एम फॉर, कि प्रॉपर 9 to 5. So I would strongly suggest do part time, manage your living expenses, but side by side, don't forget what you're here for. So keep applying for jobs. And UCD के पास career network है, just get in touch with them. एंड आपके प्रोफेसर्स भी काफ़ी हेल्प करते हैं आपकी, उनके भी नेटवर्क्स होते हैं. शेयर रिज्यूमेज विद योर प्रोफेसर्स, दे विल फॉरवर्ड इट अगर कोई रोल आता है तो. एंड वन ऑफ माई फ्रेंड इन BA, ही डिडंट हैड एनी एक्सपीरियंस but he was the first one to get placed. Why? Because one of the professor posted a opening and he sent it over email to everyone. But अब लोग इतने ज़्यादा वो जाते हैं ना कि यार इससे क्या जॉब लगेगी, प्रोफेसर ने भेजा ईमेल पे and all. But that guy literally applied, took that opportunity and literally got a job and in a good pay, and he don't have any experience. And my roommate had a lot of struggle. She recently got a job, but still. So market बहुत डाउन हो जाता है दिसंबर में, एकदम सब कुछ रिक्रूटर्स लीव पे चले जाते हैं, बट स्टिल शी गॉट अ जॉब. सो डोंट बिलीव इन ये सब चीजें कि हाँ, बट जस्ट कीप अप्लाइंग, बी पेशेंट. हो जाएगा. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन. Hi Misha, did you choose on-campus accommodation? So अगर मैं ऑन कैंपस अकोमोडेशन चूज करती तो स्मॉर्फिट को ऑन कैंपस अकोमोडेशन इज माय ओवरऑल एक्सपेंसेस जो मैंने बताए 1200 1300, वहां का सिर्फ वो अकोमोडेशन है उतना. एंड टू बी ऑनेस्ट, पापा ने लास्ट टाइम बोल दिया था कि नहीं तुम स्टूडेंट अकोमोडेशन में रह लो, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी अकोमोडेशन ढूंढने में. एंड लास्ट टाइम मेरा ऐसा हो गया था, मैं एयरबीएनबी में रह लेती हूँ फॉर अ वीक, क्योंकि उसके बाद मेरे पास 2 मंथ का अकोमोडेशन था. बट आई वाज लाइक मैं स्टूडेंट अकोमोडेशन में तो नहीं रहूंगी. So it's all about your preferences and what your budget is in your head. But student accommodation, you get that small room. ऐसा कुछ एकदम fancy नहीं मिलेगा. And you will pay 1200 1300 euros over there. Is it worth to just go for masters after UG? And are internships from India considered valuable by companies in Ireland for entry-level jobs? Yeah. यहाँ पे द बेस्ट थिंग इज दे कंसिडर एक्सपीरियंस. अगर आप कस्टमर फेसिंग भी कर रहे हो, जैसे मेरी पार्ट टाइम्स हो गई, सो दे डिड हर्ड अबाउट इट. एंड वो देखते हैं कि आपने कितनी मेहनत करी है इन द ओवरऑल प्रोसेस, आपने कितनी नॉलेज गेन करी है. इट्स नॉट अबाउट फुल टाइम जॉब या पार्ट टाइम. एंड इंटर्नशिप से यस, तो दैट्स व्हाई ग्रेड प्रोग्राम्स आर देयर जो फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए. फ्रेशर्स होते हैं. सोमिल आपके लिए जी सॉरी हाँ जी बोलिए. लाइक जब आप एंटर होगे ना यहाँ पे, 1 month आराम से स्पेंड करो, बट फ्रॉम दी अदर मंथ जस्ट कीप स्टार्ट अप्लाइंग फॉर ग्रेड रोल्स, क्योंकि ग्रेड रोल्स उसी टाइम ओपनिंग होती है एंड देन दे क्लोज इन दिसंबर, और एंड देन अगेन दे ओपन, बट देन तब तक एप्लीकेशन से वो लोग शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं. सो कीप अप्लाइंग. सोमिल आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट ये स्टूडेंट है, इनके लिए हमने भी क्वींस बेलफास्ट में अप्लाई किया है. व्हाट इज द करंट जॉब सिनेरियो आफ्टर कंप्लीटिंग MSc pharmacy analysis, Pharmacy. and how we can develop more network in Belfast and particular fields? Somil sir, please LinkedIn ID. चलो भैया सब LinkedIn ID मांग रहे हैं. जब तक हमेशा you also post your LinkedIn ID. सर मेरे असद, बहुत आप भी सारे post दोस्त कर दो. हैं. जी Yes, sir. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो फार्मेसी में हैं and they are placed in a good company like Randox and एक दो और है, मेरे को उसके नाम याद नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट हाँ वो ठीक है. मेनलैंड्स में है. सो द सिनेरियो इज वेरी गुड भाई, क्योंकि अभी मेडिकल की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है फार्मेसीज की, राइट? तो बहुत ज्यादा जॉब्स ओपनिंग है, हायरिंग है. अगेन कुछ सिनेरियोज अभी इधर के वीजास को लेके चेंज हुए हैं, लाइक यू हैव टू हैव पर्टिकुलर पे रेट्स और इतना उसके ऊपर. बट अगेन इफ यू हैव अ गुड कॉन्टैक्ट इन द कंपनी, सो यू नो लाइक आप चीजों को बेंड कर सकते हो ऑब्वियसली. जब हमें क्योंकि अभी मेरे कुछ दोस्तों को स्पॉन्सरशिप चाहिए था, तो उनकी सैलरी इतनी नहीं थी, बट दे हैव बेंड द थिंग्स ओवर, तो उनको
मिल गया स्पॉन्सरशिप उसमें ऐसा. So that's a thing. But हाँ, the scenario is very good. They have a lot of openings in the pharmacies like Randox और जो भी एक दो कंपनीज और है उधर की जो मेरे जी. को नॉलेज में है वो. But it's a good scenario उस कंपनी को लेके. गुड. तो आई थिंक अब असद, सोमिल और अमीशा को थैंक यू बोलना चाहिए. दे हैव गिवन ऑलमोस्ट, क्या टाइम हो गया है इंडिया में, मैं मोबाइल का. It's 6:35. We have been talking for last 1.5 hour. This is a never-ending discussions. So I think it was very informative for all of us. All my team members were also listening to you guys, and so they will be. I mean, they are also well educated now about a lot of things that you guys have discussed. So thank you very much, Amisha, on such a short notice. Somil, and special thanks to Thank you, sir. Asad, जो कार में बैठ के he did this session for us. So thank you all of you, and thanks to the complete team and all my students who have joined it. So I hope that was very informative. They have shared their LinkedIn profile, so you guys can definitely drop a message. But ask logical questions. They are working professionals. They are busy. So please, अगर आप लोग कर रहे हो तो थोड़ा logical questions उनको throw करो, जिससे कि and mostly wait for your visa to come. When you land the country, go and meet them. So that will be much better. Somil शायद कुछ टाइम बाद आइलैंड में दिखे तो you should meet Amisha for sure. So yeah, that's how it is. So thank you very much, guys. Thank you very much for joining, and it was great. Yeah, lovely talking to you all.